Hello dear students, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। यस डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आपकी स्टडी करवाई जा रही है साइंस की। आप लगातार देखते रहिए। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस, और जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, ह्यूमन आई लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो बिना कोई देरी किए हम पढ़ते हैं। And it enables us to see the beautiful, colorful world around us. Let us discuss about the important parts of the eye and their functions. Cornea. The front part of the eye is covered by transparent spherical membrane called cornea. Light enters the eye through cornea. Iris. Just behind the cornea is a dark-colored muscular diaphragm which has a small circular opening in the middle. Pupil. Pupil is a small circular opening of iris. The pupil appears black because no light is reflected from it. The dark center in the middle of the iris. The pupil determines how much light is let into the eye. It changes sizes to accommodate for the amount of light that is available. The iris regulates the light by adjusting the size of the pupil. Let us see how iris regulates and controls the amount of light entering the eye. When the intensity of light is more, or if it is a bright source of light, then the iris makes the pupil to contract, and as a result the amount of light entering the eye decreases. When the intensity of light is less, or if the light is dim, then the iris dilates the pupil so that more light can enter the eye. Eye lens. The eye lens is a convex lens made of a transparent jelly like proteinaceous material. The eye lens is hard at the middle and gradually becomes soft towards the outer edges. The eye lens is held in position by ciliary muscles. The ciliary muscles help in changing the curvature and focal length of the eye lens. Retina. The inner back surface of the eyeball is called retina. It is a semi-transparent membrane which is light sensitive and is equivalent to the screen of a camera. The light sensitive receptors of the retina are called rods and cones. When light falls on these receptors, they send electrical signals to the brain through the optic nerve. The space between the retina and eye lens is filled with another fluid called vitreous humor. Blind spot. It is a spot at which the optic nerve enters the eye and is insensitive to light, and hence the name. Let us discuss about accommodation of the eye and power of. तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर 11, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आपने अभी वीडियो के थ्रू, एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपने अभी आई की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, सुना और कुछ समझने की कोशिश की। अब हम उसी को आगे पढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। यदि नेत्र हैं तो पूरा संसार रंग बिरंगा है, नेत्र नहीं है तो सभी कुछ काला ही काला है, हमारे जीवन में अंधेरा है। और नेत्र हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं,
सारे कलर देख सकते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं, हर चीज हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब देखते कैसे हैं? नेत्रों से। तो नेत्रों के बारे में ही ये चैप्टर है, नेत्र के बारे में ये चैप्टर है, और हम नेत्र के बारे में अब हम अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी कंसंट्रेट से, डेडिकेशन के साथ वीडियो देखें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, एज इट इज जैसे बुक में है। सारी चीज़ें हम इस बुक के माध्यम से इसीलिए पढ़ा रहे हैं। हम स्लाइड बनाकर भी आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें छूट जाती है। हम बुक को लेकर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे मानसिक रूप से आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि सर ने हमको बुक से पढ़ाया और एक भी चीज़ आउट नहीं है, छूटी हुई नहीं है, हमने सब कुछ पढ़ा जो बुक में है। ऐसा आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे साथ इस तरीके से पढ़ने से। इसी कारण से मैं आपको बुक के साथ पढ़ा रहा हूं, अन्यथा हम गूगल स्लाइड पर जाकर भी स्लाइडें बनाकर कुछ छोटा छोटा सा स्लाइड बना देते और आपको पढ़ा देते, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक भी टॉपिक जो बुक में है, जो एनसीईआरटी आपके बुक में है, सिलेबस में है, वह छूटे नहीं, इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं मानव नेत्र। सिंपल जानकारी है, पहले देखें नेत्र के बारे में। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब जानते हो? ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है हमारे ऐसे सेंसेस, ऐसे संवेदी अंग जिनके द्वारा हम बाहर के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। ज्ञानेंद्रिय देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए शरीर की ऐसी संवेदी रचनाएं जिनसे हमें बाहरी संवेदनाओं का ज्ञान होता है, उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। उनमें से मानव नेत्र भी एक ज्ञानेंद्रिय है, हमारी त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। जीभ हमारी ज्ञानेंद्रिय है, नाक ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। इनसे हमें, कान हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इनसे हम बाहर के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके बारे में हमको पता चलता है। ओके, तो देखिए आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। यानी आंखें बंद करके हम किसी चीज को पहचान सकते हैं, उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे हाथों से छूकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर कुछ बाहरी वातावरण का अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रंगों को नहीं पहचान सकते, लोगों को नहीं देख सकते, पर्यावरण को नहीं महसूस, नेचर को नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते हैं। दूसरा ज्ञान हमें ये नहीं हो पाता है। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है, कुछ और भी चीज देख पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब इंपॉर्टेंस समझे आप कि मानव नेत्र कितने उपयोगी है। मानव नेत्र इतने उपयोगी हैं कि बिना नेत्रों के हम दूसरी चीज महसूस कर पाएंगे, लेकिन साक्षात हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते, कलर नहीं देख सकते, लोगों को नहीं देख सकते, प्रकृति के जो चीज़ें बनाई है, नेचर को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार के देखने को योग्य बनाता है कौन? नेत्र। नेत्र ही एक ऐसा ऐसा पार्ट है बॉडी में, एक ऐसा अंग है
जिसके द्वारा ही हम पूरे नेचर को देख सकते हैं, बाहरी रंग बिरंगे संसार को हम देख सकते हैं। बिना नेत्रों के ये संभव नहीं है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करते हैं। देखिए, मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करते हैं। इसका लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जो पर्दा होता है इसका, ठीक है, उस पर्दे को क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। और इस पर ही प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। देखो पतली झिल्ली कहाँ पर है, मैं इस चित्र में बताने की कोशिश करूंगा। इस तरह सामने से ये झिल्ली है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ये बाहर झिल्ली होती है इस तरह की, देखिए ये झिल्ली होती है, ठीक। चित्र 11.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर यह जो झिल्ली है ये नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, अग्र पृष्ठ यानी कि ये बाहरी सिरा, ये वाला ये सिरा बाहरी सिरे पर, ठीक, एक पारदर्शी उभार बनाती है। क्या बनाती है? पारदर्शी उभार बनाती है। यह नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, लर्न करना है, ठीक है। नेत्र में इसका जो नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? नेत्र गोलक यानी कि गोला, तो आकृति कैसी? गोलाकार। और जिसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। फोकस दूरी में समायोजन कौन करता है? क्रिस्टलीय लेंस। कौन करता है? क्रिस्टलीय लेंस फोकस दूरी में समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। देखिए परितारिका, ये कॉर्निया है, ये यहाँ पर ये परितारिका है, ठीक है। ये परितारिका देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, ठीक। परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पूछ सकते हैं कि डायफ्राम पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? डायफ्राम, ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और पुतली क्या करती है? पुतली हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश जो जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करनी है, यानी कि कम प्रकाश जाना है या ज़्यादा प्रकाश जाना है, इसका निर्धारण कौन करता है? केवल पुतली करती है, ठीक। और पुतली की साइज को कंट्रोल कौन करती है? पुतली, देखो पुतली कंट्रोल करती है किसका? प्रकाश के आने जाने का कंट्रोल करती है कि कम प्रकाश लेना है या ज़्यादा प्रकाश लेना है। लेकिन पुतली की साइज कम या ज़्यादा करना किस पर डिपेंड करता है? डायफ्राम पर निर्भर करता है। किस पर? डायफ्राम पर। पुतली की साइज का निर्धारण, साइज का नियंत्रण, साइज पर नियंत्रण लिख दो, पर नियंत्रण कौन? डायफ्राम, ठीक है। और प्रकाश पर नियंत्रण,
अंदर कितना प्रकाश जाना है ये कौन करता है? पुतली। कम जाना है या ज़्यादा जाना है इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण पुतली करती है। ठीक है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस होता है जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ पर बनता है? अभिनेत्र लेंस पर बनता है। कैसा बनता है पूछ सकते हैं। अभिनेत्र लेंस में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक। याद करने वाली चीज है कि अभिनेत्र लेंस पर प्रतिबिंब कैसा? उल्टा व वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा व वास्तविक बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। रेटिना क्या है? एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली वाली रचना है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है असंख्य मात्रा में। इन्हीं प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से प्रकाश की संवेदना का पता चलता है और रेटिना फिर उसके उन संवेदनाओं के अनुसार ही प्रकाश को अंदर या बाहर जाने का नियंत्रण करती है, मात्रा का नियंत्रण करती है। प्रदीप्ति होने के कारण प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। प्रदीप्ति होने के कारण यानी कि सूर्य का जब प्रकाश आता है या किसी चीज से लौटकर जब प्रकाश हमारी पुतली तक पहुंचता है, रेटिना पर पहुंचता है, तो फिर रेटिना की जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वह सक्रिय हो जाती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल डेवलप करती है। क्या? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ठीक है। देखो सारा का सारा ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे ही लर्न कर लेना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वह 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक है। और यह आपके ये छोटी छोटी चीजें आपके जब कोई मेडिकल में जाएगा तो वहाँ निट के एग्जाम में भी आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इनको भूले नहीं, याद रहे। ठीक है। ये सिग्नल द्रक तंत्रिकाओं के द्वारा, कौन सी तंत्रिका? द्रक तंत्रिकाओं के द्वारा। द्रक तंत्रिका यानी दृष्टि तंत्रिका, देखने वाली तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। जो ये सिग्नल बनते हैं ना, सिग्नल आया कि भाई कोई चीज देखी मैंने, उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बन गया? उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस पर बना। अभिनेत्र लेंस से यह सूचना जाएगी द्रक तंत्रिका में जाएगी। द्रक तंत्रिका से यह सूचना कहां जाएगी? मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क इन सूचनाओं की व्याख्या करता है, पता लगाता है तथा अंत में यह सूचना को संसाधित करता है। यानी कि इसमें मस्तिष्क की, ब्रेन की कैलकुलेशन के द्वारा ये पता लगता है कि ये जो चीज़ है ये फलाना चीज़ है, ये ऐसी दिख रही है, ये ऐसी दिख रही है। इसका अंदर प्रोसेस कौन करता है? मस्तिष्क करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा ही वैसा ही देख लेते हैं। ये रही नेत्र की क्रिया विधि कि कैसे देखता है। तो ये आपको पता लगा कि किस तरीके से देखते हैं। आँख, नेत्र की क्रियाविधि किस प्रकार से है और नेत्र की देखने की जो क्रियाविधि है वह कैसी है, ये हमने पढ़ी। तो इसको आप दोबारा रिवाइज करना। ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोबारा आप देख सकते हैं कि मानव नेत्र कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे सबसे कहाँ पर जाता है?
सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, सबसे पहले रेटिना, ठीक है। फिर प्रकाश एक पतली नेत्र झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर पारदर्शी उभार बनाती है, जिसे नेत्र गोलक की आकृति उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये पूछा जा सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक होता है। फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन भी करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। पुतली छोटी या बड़ी करनी है, इसका डिटर्मिनेशन करता है परितारिका। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है, नेत्र में कितना प्रकाश जाना है इसको कंट्रोल करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत मात्रा में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है और यह सिग्नल दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा देते हैं। मस्तिष्क फिर इन सूचनाओं का उसके अनुसार विश्लेषण करती है और पता लगाती है कि वास्तव में चीज़ क्या है, और फिर जाकर हम देख पाते हैं किसी चीज़ को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। सारी सूचनाओं का विश्लेषण मस्तिष्क में होता है और ये सूचना दृक तंत्रिकाओं के द्वारा, दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में जाती है। अब आप देखिए ये एक ब्लॉक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है इसलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं के कारण, कुसंक्रिया मतलब गलत क्रियाओं के कारण, उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाए नेत्र की कोशिकाओं में, तो ऐसी क्रियाओं, उनकी क्रियाओं के कारण से दृष्टि प्रकारियों में सार्थक क्षति हो सकती है, यानी कि देखने की क्षमता में कोई क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद, कांचाव द्रव्य या रेटिना जैसी संरचना या दृक तंत्रिका भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो चाक्षुष विकृति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी विकृति, हाईलाइट कर देते हैं इसको। चाक्षुष विकृति किसके कारण से, नेत्र का कोई सा भी एक अंग जैसे कार्निया, पुतली, परितारिका, नेत्रोद, काचाभ द्रव, रेटिना, दृक तंत्रिका, इनमें से कोई में किसी में भी कोई विसंगति आ जाती है या कोई लग जाती है, किसी न किसी तरीके से अपना आप को इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर जो विकृति आ जाती है, जो बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं चाक्षुष विकृति। ठीक है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाश के कमरे में प्रवेश करते हैं, तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं। याद रखना और करके देखना आप इस प्रयोग को आज ही, जब आप इस वीडियो को देखेंगे। अधिक प्रकाश से कम प्रकाश की, यानी कि बाहर रहना, बाहर से कमरे में, जिस कमरे में बहुत कम प्रकाश जाता है उसमें जाना है आपको, अंधेरे कमरे में। तो आरंभ में आपको कुछ देर तक कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है, कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तथापि लेकिन कुछ समय पश्चात आप मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसी तरीके से हमारी आंखों में प्रकाश जाने लगता है और हम उन चीज़ों को फिर देख पाते हैं, क्योंकि
पहले कुछ समय पहले जब हम तेज प्रकाश में थे, उस समय हमारी आंखें तेज प्रकाश में वस्तुओं को देखने के अनुसार अनुकूलित थी, लेकिन जैसे ही हम कम प्रकाश वाले कमरे में गए तो हमारी आंखों में प्रकाश का आने जाने का कंट्रोल इस तरीके से हो जाता है कि कुछ ही समय पश्चात हम उस अंधेरे कमरे में भी कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक के द्वारा की भांति कार्य करती है, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। ये अपन ने पढ़ लिया है कि आंख की पुतली को किसकी सहायता से की साइज को किसके द्वारा बदला जा सकता है, परितारिका की सहायता से उस आंख की पुतली की साइज को चेंज किया जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है। जब तेज प्रकाश में होते हैं तो हमारी पुतली छोटी हो जाती है। जब कम प्रकाश में आते हैं तो हमारी पुतली बड़ी हो जाती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। जब प्रकाश में होते हैं तो पुतली छोटी हो जाती है ताकि आंख में कम प्रकाश प्रवेश करे, लेकिन अंधेरे में हमारी पुतली चौड़ी हो जाती है ताकि अधिक प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करे और हम चीज़ों को आसानी से देख पाएं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। अब आता है समंजन समता। ठीक है, समंजन समता, एडजस्टेंट। ठीक है, एडजस्ट करने की क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, जिसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमावी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाती है। जब पेशियों में कमजोर पड़ जाती है, शिथिलन आ जाती है उम्र के साथ, तो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ होते हैं। कब? जब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है तो दूर की रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट तरीके से देख पाने में असमर्थ होते हैं। और जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है और इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता होती है, ये गोलाई। जो लेंस होता है उसकी गोलाई। ठीक है, ये गोलाई, इसकी गोलाई, ये देखिए ये गोलाई ज़्यादा है। तो जब पेशियां शिथिल हो जाती है तब इसकी जो गोलाई है वह कम हो जाती है, ये लेंस चपटा सा हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ होते हैं। और जब आंख के निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, पास की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, तो पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। देखिए ये ठीक, निकट की वस्तुओं को जब देख पाते हैं तो पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। देखिए जब अभिनेत्र लेंस पतला होगा, चपटा होगा, तब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन जब इस तरीके से मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अभिनेत्र लेंस जब मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगी, अभिनेत्र लेंस जब चपटा होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब हम पढ़ रहे थे समंजन समता। तो समंजन समता देखिए, अभिनेत्र लेंस की वह समता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समंजन समता
कहलाती है। अभिनेत्र लेंस जो हमारा लेंस होता है ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है फोकस दूरी को, दूर की चीज के हिसाब से आंखों को अपना आप एडजस्ट कर लेता है, पास की चीज देखने के हिसाब से अपना आप एडजस्ट कर लेता है। इसी एडजस्टमेंट को समंजन क्षमता कहते हैं। मोस्ट है देखिए, और आपको लर्न करना चाहिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रख देने पर उसे पढ़ने का प्रयास करो। आप कोई भी चीज़ है पढ़ने की, जैसे ये बुक है मेरे पास, ये स्वामी विवेकानंद की बुक है एक। अब इसे आप इस तरीके से पास में लाना बिल्कुल, और आप पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। अक्षरों को देखना, पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। आपको कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा, ठीक दिखेगा धुंधला। आप करके देखेंगे तब पता चलेगा। जब मैं बोल रहा हूँ, हम कर रहे हैं इस प्रयोग को, जैसे मैंने किया, इसी समय पर आप भी कीजिए। या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है क्या? किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। कितना सेंटीमीटर? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी, ऐसे इतनी 25 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे पास में लाते जाइए तो नेत्रों पर तनाव बढ़ता है और धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु पूछेंगे, ठीक। नेत्र का निकट बिंदु, इतनी लाइन पढ़ी हमें, केवल ये एक चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 25 सेंटीमीटर नेत्र का निकट बिंदु। सॉरी आपको दिखा नहीं, ये नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर वह न्यूनतम दूरी है जिस पर हम किसी किताब को, अक्षरों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के बाद में यदि हम किताब को, बुक को ऐसे लाएंगे तो हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर पुस्तकों को अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके, अच्छी तरीके से बिना किसी तनाव के स्पष्ट चीज़ों को देखा जा सके, और वह दूरी है 25 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं निकट बिंदु। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु किसे कहते हैं? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है वह नेत्र का दूर बिंदु, फार पॉइंट कहलाता है। कहाँ तक कोई व्यक्ति, ये सबका अलग अलग होता है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग, कोई कम दूरी तक देख पाता है, कोई ज़्यादा दूरी तक देख पाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये है। और सामान्य नेत्र, यदि उसके नेत्र सही हैं तो यह दूरी अनंत होती है, अनंत तक देख सकता है, ठीक। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होती है। जैसे हम तारों को देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं, सूरज कितनी दूर है उसको देख पाते हैं, तो अनंत क्षमता है इस तरीके से दूर बिंदु की। और निकट बिंदु की क्षमता 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु की अनंत, सामान्य नेत्रों के लिए। कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अंडरलाइन कर लो। व्यक्तियों के अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अब लिख लो इसको आप, मोस्ट।
लिखने वाली चीज, लर्न करने वाली चीज। मोतियाबिंद क्या होता है कि अधिक उम्र वाले कुछ लोगों में उनके क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। अधिक आयु वाले लोगों के कुछ लोगों के नेत्रों का जो क्रिस्टलीय लेंस है वह दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, और इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि कम हो जाती है या क्षय हो जाती है, पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है, जिसके कारण वह देख नहीं पाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा से दृष्टि लौटना संभव है। मोतियाबिंद से क्या होता है, इसके कारण, मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली नहीं देख पाता है मोतियाबिंद के कारण। और मोतियाबिंद सही हो जाता है, सही किया जा सकता है ऑपरेशन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दृष्टि हमारे लिए दो नेत्र, दृष्टि के लिए हमारे पास दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं? दो नेत्र क्यों हैं दृष्टि के लिए, एक ही क्यों नहीं, जबकि हम एक से भी देख सकते हैं? आप करके देखिए, एक से देख सकते हो या नहीं। एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने से हमें अनेक लाभ होते हैं। पहली चीज तो यह है, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी कि एक नेत्र से देखिए चारों तरफ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो नेत्र होते हैं तब हम थोड़ा थोड़ा काफी दूर तक इधर भी दोनों साइड में देख पाते हैं, ठीक। मानव के नेत्र का क्षैतिज दृष्टि से क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों के द्वारा ये 180 डिग्री बढ़ जाता है। एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, यानी कि एक आंख ऐसे बंद कीजिए और देखिए इधर उधर, तो 150 डिग्री तक हम देख पाते हैं। जबकि यदि दोनों नेत्र खुले हुए हैं, दोनों नेत्र हैं, तो 180 डिग्री तक हम देख पाते हैं। तो ये लाभ है दो नेत्र होने से। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। शिकार करने वाले जंतु जैसे शेर हो गया, तो इस तरह है यहाँ पर उनके, ठीक है, ताकि उन्हें अधिक दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। इधर उधर होते हैं उनके, ठीक है, ताकि ज्यादा इधर का दिख जाता है उनको, साइडों का, ओके। हमें सामने का दिखता है, उन्हें इधर का भी दिखता है और आंखें इधर भी घुमा सकते हैं, ऐसा दिखता रहता है उनको, ठीक। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं, इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। परंतु हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा भी दिखाई देती है। जब हम एक ही आंख से देखते हैं तो हमें कई बार चीजों की गहराई नहीं दिख पाती है या सुस्पष्ट नहीं दिख पाता है, लेकिन जब दोनों आंख खुली होती है तो हम चीजों की गहराई को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है। यहाँ पर ये पृथक्कन नेत्रों के बीच ये स्पेस हो रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये दो नेत्र बना दिए हैं और ये दो नेत्रों के बीच का पृथक्कन, ये दूरी, ठीक। क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। प्रतिबिंब दोनों में कोई चीज हम देखते हैं, कोई भी चीज जिसे आप देख रहे हो, यदि आप अभी मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल आपको इस आंख से भी दिखेगा और एक इस आंख से भी दिखेगा। प्रतिबिंब इस आंख में भी बनेगा और प्रतिबिंब इस आंख में भी बनेगा। अब ये दृक तंत्रिकाओं के द्वारा जब दोनों के प्रतिबिंबों की सूचना जब मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है तो मस्तिष्क उन दोनों प्रतिबिंबों को एक प्रतिबिंब में बदल देता है और हमें वह चीज एक ही दिखाई देती है। इसीलिए प्रश्न आता है कि
जब एक नेत्र से हम वस्तु, एक नेत्र से कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, एक नेत्र से एक चीज दिखाई देती है, तो एक मोबाइल दिखाई देता है, तो दो नेत्र से दो मोबाइल क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रतिबिंब दोनों नेत्रों से ही बनते हैं, लेकिन दृक तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना जब मस्तिष्क में जाती है तो मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंबों को एक प्रतिबिंब में बदल देता है। इसी कारण कोई भी चीज हमको दोनों आंखों से एक ही दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी पास या दूर है। ये भी पता लग जाता है मस्तिष्क को, मस्तिष्क एक अंदाजा लगा देता है कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है या कितनी पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उनका संशोधन। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आप मेंटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कि किताब के साथ पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी हर चीज़ क्लियर होते हुए जा रही है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से साइंस पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटने नहीं पाए, एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे लिख सको और जल्दी आप उत्तर सोच सको। इस तरीके से हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए। आप यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ लर्न करने बैठेंगे, समझने बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी, चीज़ें याद होगी। एक बार देखने के बाद, लिखने के बाद चीज़ों को दोबारा देखिए, दोबारा लर्न करिए। इस तरीके से 4-5 बार जब आप रिपीट कर देंगे, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो रिपीटेशन करेंगे तभी कोई चीज़ हमारी आदत में आती है। रिपीटेशन करने से ही चीज़ें आदत में आती है और हमें बार बार उन चीज़ों के नाम याद रहने लगते हैं, क्वेश्चन याद रहने लगते हैं, क्योंकि बार बार जब हम उनको याद कर रहे हैं तो वह हमारी फिर आदत में आ जाती है। कोई चीज़ आदत में आने के बाद में हम उसे भूलने में हमें कठिनाई होती है, हम उस चीज़ को आसानी से नहीं भूल सकते हैं। इसलिए आप आदत बनाइए बार बार पढ़ने की। बार बार आप पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से वह आपकी आदत बन जाएगी और आपकी स्थायी मेमोरी में चली जाएगी। कोई भी चीज़ स्थायी मेमोरी में चली जाती है तो वह आदत बन जाती है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। आपका दिन शुभ हो, अच्छी तरीके से आपको लर्न हो, आत्मविश्वास के साथ आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।